Hello students, welcome again in social science class. Today we'll start our chapter 11th of history, that is the first war of independence 1857. This is the most important chapter and very easy also. It need to take understanding thoroughly. Before this in history we had done how the East India Company came to our country and they took control over the entire India. In chapter 9th we had learned about the different battles that they fought with the Indian rulers, and they exploit our resources in different ways. They took advantage of the situation because at that time Indian rulers were fighting with each other and there were no unity and no central authority that can control over the entire country. So these all situation give the advantage to the Britishers to took control over India, and after gaining power they exploit our Indian like peasants. How they exploited the peasants? In India, the main source of the income of the Britishers was land revenue. They collected the revenue. We can see the taxes that taken on the produce of the agriculture production, and they adopted various methods. In chapter 10, there was different methods of land revenue which were introduced by the Britishers, like permanent settlement, Raiyatwadi system, Mahalwadi system, and they collected the revenue from the peasants. And if the farmers were unable to pay the revenue, they were evicted from their land and they were tortured. उनके साथ टॉर्चर किया जाता था और उनकी लैंड से उन्हें बेदखल कर देते थे. और इसके अलावा उन्होंने क्या किया peasant के साथ? They forced them to grow the cash crops, only those crops which were in the demands in the British industry. But they bought from our Indian farmers at the very cheap rate and sell them in other countries at very high prices. So the main motive of the Britishers was in India to gain maximum profit. And so they exploited the peasant in different way. They also exploited the other section of society like the tribal people. They exploit our Indian industries. Indian rulers were also suffering from the exploitation of the Britishers. But when all these sufferings go at extreme level, then it convert into the revolt. जब हमारे साथ कुछ बहुत अति होती है हर चीज़ की, कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो जब एक्सप्लॉयटेशन भी एक लिमिट क्रॉस कर गया तो इसने किस चीज़ का रूप ले लिया? रिवोल्ट का. पीपल बिकेम द रेबल्स. सो इन दिस चैप्टर we'll study about the what was the first war of independence, revolt of 1857, what were the causes or circumstances behind this, and how this happened, what was the course of the revolt, and what were the results, and most importantly what were the causes of failure of this revolt. Let's begin this chapter. The revolt of 1857, it was a landmark in the history of India's struggle for freedom. It started on May 10, 1857 with the mutiny of soldiers in Meerut cantonment. In this line, three questions are there. When this moment began? On 10th May 1857. Who started it? With the mutiny of soldiers. Soldiers की बगावत से शुरू हुआ. कहाँ पर? In Meerut cantonment. By the soldiers. The revolutionary soldiers marched toward Delhi on May 11, 1857. After the Meerut cantonment, the soldiers moved to Delhi, and there they crossed the Yamuna river and entered the Red Fort. And they appealed to the aged Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar. As you all know, in the chapter 8 we had done that who was the last Mughal Emperor? Bahadur Shah Zafar II. Because after, that was the time of the downfall of the Mughal Empire, and it also gave advantage to the Britishers to take control over India. Because after the Aurangzeb, there was no any strong successor of the Mughal Empire. And he was emperor but without any authority. कहने को वो थे कि वो मुग़ल शासक हैं बट उनके पास पावर नहीं थी.
तो सोल्जर्स ने उन्हें अपील की कि वो उनके लीडर बने, बिकॉज एनी मोमेंट, कोई भी हम मोमेंट करें, कोई भी बैटल है, इट रिक्वायर्ड अ लीडर। तो उन्होंने बहादुर शाह को अपील करी कि वो उनके लीडर बन जाए। सो ही वॉज प्रोक्लेम्ड एज अ शहनशाह हिंदुस्तान। हु वॉज प्रोक्लेम्ड एज शहनशाह हिंदुस्तान? Bahadur Shah Zafar. The sepoys captured the city of Delhi, killed many Englishmen, and ransacked the many public offices. Now, revolt was started by Indian soldiers in the service of Indian East India Company. It soon spread to different parts of the country. In chapter 9, he already done how Britishers success here by building this strong army. उन्होंने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया था और उसके अंदर इंडियन पीपल्स को भी रिक्रूट किया था, इंडियन को भी सोल्जर्स बनाकर उन्हें भर्ती किया, लेकिन उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं किया जाता था। इसीलिए आगे चल के डिटेल में आपको पता चलेगा कि क्यों सोल्जर्स ने ये रिवोल्ट किया था। बेशक स्टार्ट हुआ था ये सोल्जर्स की तरफ से, लेकिन फिर डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो थे उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लाइक पीजेंट, आर्टिशन, सोल्जर्स, एडुकेटेड इंडियन एंड मैनी इंडियन रूलर्स ज्वाइंड द हैंड टू फाइट हीरोइकली अगेंस्ट द फॉरेन रूल। पीजेंट्स मैंने बताया क्यों उन्होंने पार्टिसिपेट किया, बिकॉज दे वर एक्सप्लॉयटेड बाय द ब्रिटिशर्स, दे वर फोर्स्ड टू ग्रो द कैश क्रॉप्स, दे हैड टू पे द लैंड रेवेन्यू, एंड इफ़ दे डिड नॉट पे द लैंड रेवेन्यू दे वर एविक्टेड फ्रॉम देयर लैंड। उन्हें अपनी लैंड से बेदखल कर दिया जाता था। और बहुत सारे जो इंडियन रूलर्स थे वो भी किसी न किसी वजह से अपनी किंगडम को खो चुके थे ब्रिटिश के अंदर, तो वो उनके से नाराज़ थे और उनकी बहुत सारी ऐसी पॉलिसी थी जिसकी वजह से वो उनके खिलाफ़ हो चुके थे। एडुकेटेड इंडियन जो पढ़ लिख चुके थे, अब उन्हें ब्रिटिशर के मंसूबे समझ आ रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर और क्यों आए हैं, और इसलिए उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एंड दे ऑल, most importantly, Hindu Muslim unity was there, and all together they wanted to oppose the foreign domination. And this event was called the uprising, the revolt of 1857, or Sepoy mutiny by the Britisher. The Britisher gave different name to this incident. What was the another name of first war of independence? Uprising, the revolt of 1857, the Sepoy mutiny. But our Indian historian, जो हमारे इतिहासकार थे, उन्होंने इस म्यूटनी को, इस रिवोल्ट को क्या नाम दिया? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। Here is also one question, why the revolt of 1857 was called the first war of independence? Because it was the first time when the different section of Indian society united and fought as a one nation to throw off the shackles of फॉरेन डोमिनेशन, कि जब डिफरेंट सेक्शन सोसाइटी के पीजेंट भी थे, आर्टिशन भी थे, ट्राइबल भी थे, इंडियन रूलर्स भी थे और एजुकेटेड पीपल भी थे, दे ऑल कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन डोमिनेशन। दैट्स वाई इट वाज कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की पहली लड़ाई। Ever since the British had set foot on Indian soil, the nation was losing its wealth and independence. जब से ब्रिटिशर्स ने हमारी धरती पर पैर रखे, तब से इंडिया ने अपना वेल्थ, अपना धन भी खो दिया और अपनी आज़ादी भी खो दी थी। एंड द एम ऑफ द ब्रिटिशर वॉज टू एक्सप्लॉयट द रिसोर्स ऑफ आवर कंट्री। उनका मकसद क्या था? हमारे यहाँ के जितने भी रिसोर्स उन्हें एक्सप्लॉयट करना फॉर देयर ऑन बेनिफिट, बिकॉज द मेन मोटिव ऑफ द ब्रिटिशर वॉज इन इंडिया टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट, and for this they did everything by hook and crook. They wanted wanted to more profit for their own country, so they exploited our resources. As you all know, India was known as गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया कहा जाता था, बिकॉज ऑफ इट्स वेल्थ एंड रिसोर्सेज, रिच इन रिसोर्सेज. So that attracted the Britishers to came in our country, and then they thought about to rule over India.
and from 1757 onwards they won almost every battle against the Indian rulers and kept on expanding the area under their control. आपको याद होगा कि 1757 में इंडियन रूलर्स और ब्रिटिश के साथ जो पहली लड़ाई हुई थी 1757 में कौन सी थी? बैटल ऑफ प्लासी। जब उन्होंने शुरुआत किया था इंडिया के टेरिटरीज़ को अपने कब्जे में लेना। इससे पहले कार्नेटिक वॉर्स भी हुई थी तो, लेकिन वो फ्रेंच राइवल्स को दूर करने के लिए। उनके बाद वो यहाँ पर वही कंपनी रह गई थी जो डोमिनेट कर रही थी। और 1757 में उन्होंने बंगाल को कंट्रोल किया और आफ्टर दैट दे टुक कंट्रोल ओवर मैक्सिमम पार्ट ऑफ द इंडिया एंड दे सेंड इंडियन वेल्थ बैक टू इंग्लैंड। यहाँ से सारा पैसा कहाँ भेज रहे थे? अपनी कंट्री में। एंड दिस एंगर्ड द इंडियन। अब इंडियंस को समझ आ रही थी और उन्होंने गुस्सा जाहिर किया, वो उनसे नाराज़ हो रहे थे। एंड फाइनली आफ्टर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ 100 years in 1857, a number of Indians revolted against the exploitation. So this became the platform for the revolt of 1857. Now let's discuss the causes of the revolt. क्या कारण थे इस रिवोल्ट के? बिकॉज दिस रिवोल्ट वॉज नॉट अ रिजल्ट ऑफ द इंसिडेंट ऑफ वन डे और वन वीक. इट वॉज द हिस्ट्री ऑफ, इट वॉज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग एक्सप्लॉयटेशन एंड सफरिंग. And these sufferings categorized into different causes like political causes, social causes, economic causes, religious, military and immediate causes. Let's discuss one by one. First of all, political causes. This question can be asked directly that what were the political causes of revolt of 1857, or you can ask the why did Indian rulers participate in the revolt of 1857, or what were the causes of resentment among the Indian rulers against the Britishers. कि इंडियन रूलर्स क्यों नाराज़ थे और उन्होंने क्यों इस मोमेंट में पार्टिसिपेट किया. Let's start. The revolt was the outcome of the widespread resentment that had been boiling against the British for a long time. ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ इंडियन रूलर के मन में जो इतना गुस्सा इतने लंबे टाइम से वो सफरिंग की वजह से वो उनके मन में नाराज़गी भर रही थी. द इंडियन रूलर्स, नॉट सिपाही, इंडियन रूलर्स वर डिससेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू देम. जो उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, दे वर नॉट हैप्पी विद दैट. एंड द इंडियन रूलर्स विच वर द मेन इंडियन रूलर्स दैट टुक पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, इट वॉज बहादुर शाह जफ़र, तांत्या टोपे ऑफ ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, नाना साहेब ऑफ कानपुर. दे हैड पर्सनल स्कोर टू सेटल विद द ब्रिटिशर्स. ये मेन रूलर्स थे, इंडियन रूलर्स, जिन्होंने अपने अपने किंगडम से इस रिवोल्ट को लीड किया था. उनके अपने अपने नाराज़गी थी क्यों? बिकॉज दे वर लॉस्ट देयर किंगडम अंडर द ब्रिटिश रूल एंड फ्रॉम डिफरेंट कॉजेज. सो ऑल इंडियन रूलर्स वर ऑल्सो सफरिंग. द कॉमन पीपल, वाई वर कॉमन पीपल इन्वॉल्व? Because the common people of Delhi, Lucknow, Gwalior and other places had no narrow ambitions of power or money. They just wanted to end the foreign exploitation. उनको पावर या मनी नहीं चाहिए थी. वो चाहते थे कि हमारे देश से जो विदेशी अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, उसका खात्मा किया जाए, उन्हें यहाँ से आउट किया जाए. और क्या नेक्स्ट पॉइंट बनेगा? द पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन. अनेक्सेशन आपने पीछे भी पढ़ा है. अनेक्सेशन का मीनिंग क्या होता है? व्हेन द ब्रिटिश टुक कंट्रोल ओवर इंडियन टेरिटरीज एंड मर्ज विद द ब्रिटिश इंडिया, द पार्ट ओवर विच द ब्रिटिशर टुक कंट्रोल, दैट इज़ कॉल्ड ब्रिटिश इंडिया. जैसे सबसे पहले उन्होंने बंगाल पे कब्जा किया, फिर मद्रास, लेटर ऑन दे टुक कंट्रोल ओवर एंटायर इंडिया. एंड दिस पॉलिसी वेयर दे टुक टेकिंग कंट्रोल, दैट वाज annexation. And who was known as greatest annexionist? It was Lord Dalhousie, who became the Governor General in 1848. He was known as greatest annexionist. He annexed many Indian states into the British India.
and he introduced a policy that was known as doctrine of lapse. It was from his side an important policy because the main motive of the Britishers was to gain profit by hook and crook. वो इंडियन टेरिटरीज पे कब्जा करना चाहते थे और उसके लिए उन्हें जो ठीक लगता उन्होंने वो किया। इसीलिए लॉर्ड डलहौजी ने अपनी एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी। वो कौन सी थी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसमें क्या था? दैट इफ़ इंडियन रूलर डिड नॉट हैव नेचुरल हायर दे वर नॉट अलाउड टू अडॉप्ट चाइल्ड। कि अगर किसी राजा के पास अपनी औलाद नहीं है, अपनी संतान नहीं है, तो वो बच्चा गोद नहीं ले सकता। दे वर नॉट अलाउड टू अडॉप्ट चाइल्ड एंड after their death or demise the whole kingdom were gone to the British Empire. मीन्स कि अगर वो गोद नहीं लेंगे तो उनके बाद उनकी सारा जो राजपाट है, सारे वो राजगद्दी पे कोई बैठने वाला नहीं है, तो वो सारा का सारा राज्य किसके पास चला जाएगा? ब्रिटिशर्स के पास। This was the real motive behind this policy. That's why they introduced. And Rani Lakshmi Bai also lost her kingdom due to this policy. So that's why these Indian rulers were angry against the Britishers and they took part in this movement. And it is believed that if the Britishers would have not snapped the compensation that king was paid earlier in return of a share in government, the king would not have joined the revolt. The British signed many treaties. Next point. ब्रिटिशर्स दे साइन मैनी ट्रीटी विद द इंडियन रूलर्स। उन्होंने इंडियन राजाओं के साथ बहुत सारी ट्रीटीज़ करी, संधि की थी, एग्रीमेंट्स किए अपने बेनिफिट के लिए, बट दे वॉयलेटेड दैम एज़ पर देयर कन्वीनियंस। जब उन्हें ठीक लगता, उनका काम हो जाता, उनका काम निकल जाता, तो वो उस पॉलिसी को, उस ट्रीटी को भी तोड़ देते थे। मीन्स दे मेड रूल्स एंड वॉयलेटेड देम एज़ पर देयर ऑन नीड। अपनी ज़रूरत के अनुसार रूल्स बनाते थे और जब उनका मन करता तो उन्हें वो तोड़ देते थे। वन सच ट्रीटी साइंड विद द अवध वॉज सब्सिस्ट्री अलायंस इन 1801। 1801 में अवध के साथ उन्होंने एक अलायंस किया था, सब्सिस्ट्री अलायंस। दिस वॉज द अनदर पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स टू टुक कंट्रोल ओवर इंडिया। क्या था ये? बिकॉज ब्रिटिशर्स वर वेरी वेल नॉन दैट इंडियन रूलर्स वर फाइटिंग विद ईच अदर फॉर गेनिंग पावर। कि वो सिंहासन पे बैठने के लिए कभी पेशवाशिप की हो रही है, कभी नवाब की हो रही है, वो आपस में लड़ रहे हैं। तो ब्रिटिशर ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और उन्हें प्रॉमिस किया कि हम आपको सुरक्षा देंगे, आपको डिफेंड करेंगे कि अगर आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है या आपको गद्दी पर बैठने के लिए अपने जो किसी के साथ आपको कंपटीशन है तो हम आपको मदद करेंगे, बट इन रिटर्न आपको क्या करना होगा? यू हैव टू बियर द होल एक्सपेंडिचर टू मेंटेन द आर्मी। आर्मी को मेंटेन करने के लिए जितना भी खर्चा होगा वो आपको उठाना पड़ेगा, और साथ साथ हमारा जो आर्मी है वो यहाँ परमानेंट सेटल रहेगी और उसका एक रेजिमेंट आपकी कोर्ट में भी रहेगा। तो लेकिन रियल मोटिव क्या था इसके पीछे? कि वो अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे इंडियन के खर्चे के ऊपर, खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे और लेकिन फॉल्स प्रॉमिस कर रहे थे वो इंडियन रूलर्स के साथ। तो अवध जिनकी हम बात कर रहे हैं, अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। ही वॉज कंपाइल्ड टू एक्सेप्ट द permanent British army within the territory and to pay a subsidy for its maintenance. He could not revolt any other Europeans in his service without prior approval. और वो किसी और यूरोपियंस को, चाहे वो फ्रेंच हैं या और हैं, किसी और को अपने राज दरबार में वो नहीं अपॉइंट कर सकते उनकी परमिशन के बिना। और जब भी राजा अपनी कोई मीटिंग या सभा बुलाते थे तो वहाँ पर ब्रिटिशर का एक परमानेंट रेजिडेंट मौजूद होता था, ऑफिसर उनका, ताकि वो जान सके कि राजा क्या डिसीज़न ले रहे हैं, क्या पॉलिसी बना रहे हैं। तो वो उनके अंदर हर एक मसले में वो इंटरफेयर करते थे। तो अवध के साथ उन्होंने पहले रिलेशन अच्छे बनाए हुए थे। अवध वॉज एली फॉर अ सेंचुरी। एली का मतलब फ्रेंड थे, लेकिन उनके साथ भी उन्होंने क्या किया? धोखा किया। दे अनेक्स द अवध
उन्होंने अवध के ऊपर भी कब्जा कर लिया। क्या एक्सक्यूज़ दिया? दैट दे वर नॉट, द गवर्नमेंट वॉज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, कि उनकी गवर्नमेंट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है। तो इसलिए वहाँ के नवाब को वहाँ से निकाला देकर कहाँ भेज दिया? कैलकटा के अंदर, और बेगम हजरत महल को वहाँ का राजपाट संभाल दिया। तो इससे जो इंडियन रूलर्स थे वो शॉक्ड हुए कि जो इनका फ्रेंड था इतना अच्छा, उसके साथ भी ऐसा किया। तो इस वजह से वो सभी रूलर्स ने उनके प्रति नाराज़गी शो की, एंड दे टुक पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857. सो स्टूडेंट, दीज वर द पॉलिटिकल कॉजेज of revolt of 1857. It was the outcome of widespread resentment against the Britishers. For a long time, Indian rulers were dissatisfied with the treatment meted out to them. Then you can say many Indian rulers like Bahadur Shah Zafar, Tantya Tope, Rani Lakshmi Bai, Nana Sahib of Kanpur, they led the revolt in their respective territories. And common people wanted to end the foreign exploitation. Then next point, the British adopted various policies like the doctrine of lapse, subsidiary alliances, that created fear and resentment among the Indian rulers. After that, the Britishers signed many treaties with the king and nawab, but they violated them as per their कन्वीनियंस। इसमें एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाजिद अली शाह के साथ जो उन्होंने ट्रीटी साइन की, बट लेकिन उसको भी उन्होंने वॉयलेट कर दिया और उसे अनेक्स कर दिया। सो दीज वर द कॉजेज़, पॉलिटिकल कॉजेज़ दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857.